کی تیسری خطرناک لہر سے ملک میں کورونا پھیلنے کی شرح 11.2% تک پہ پہنچی ہے۔ سوات سب سے زیادہ متاثر علاقہ بن گیا، پھر پشاور اور لاہور میں سب سے زیادہ کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 41 جیتے جاگتے انسان موت کی وادی میں چلے گئے، 4525 کیسز رپورٹ ہوئے، یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ سانس رکنے لگی، موت کا رقص بہت تیز ہو گیا۔ کورونا کو جہاں شکار مل رہا ہے اپنے شکنجے میں جکڑ رہا ہے۔ ملک میں کورونا کیسز کی شرح انتہائی ہولناک، 11.2%۔ سب سے زیادہ تباہ کن صورتحال سوات کی، وائرس پھیلنے کی شرح 23% تک جا پہنچی۔ پھر پشاور میں جہاں کورونا پھیلنے کی شرح 22% اور لاہور میں 17% سے موذی وائرس کے پھیلاؤ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ گزشتہ ایک روز میں مزید 41 جیتے جاگتے انسان منو مٹی نیچے چلے گئے۔ اب تک 14,256 پاکستانیوں کو کورونا اپنا شکار بنا کر موت کے منہ میں دھکیل چکا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40,500 کے قریب ٹیسٹوں میں 4,525 افراد کی رپورٹ مثبت آئی۔ احتیاط نہ کی، موت گلے پڑ گئی، بات نہ مانی، بے حسی کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کہتے رہے کورونا نہ چھوٹے کو دیکھے گا نہ بڑوں کو، نہ جوان کو دیکھے گا نہ ضعیف کو، لیکن لوگوں نے ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ چائے خانے، خوش گپیاں، باہر کی دنیا آباد کی، لیکن کورونا نے گھر ویران کرنا شروع کر دیے۔ سوات، پشاور اور لاہور سمیت ملک بھر کے اسپتالوں میں بیڈز کم پڑ گئے۔ اپنے پیاروں کی زندگی کی خاطر وینٹیلیٹرز کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس وقت اسپتالوں میں 3,668 مریض وینٹیلیٹرز پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کورونا کی تیسری لہر انتہائی خطرناک، پانی سر سے اونچا ہونے لگا۔ یہ ہولناک صورتحال دیکھتے ہوئے آج نیوز پھر عوام پر سوال چھوڑے جا رہا ہے۔ میرے ہم وطنوں، آخر کیوں احتیاط نہیں کرتے؟ آخر کیوں ماسک نہیں پہنتے؟ آخر کیوں SOP پر عمل نہیں کرتے؟ وادی سوات میں کیسز کی شرح 23% ہونے کے باوجود بھی شہری احتیاطی تدابیر پر عمل سے انکاری ہیں۔ مزید کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں اپنے نمائندے انور انجم سے۔ انور انجم، عوام احتیاطی تدابیر سے انکاری کیوں ہیں؟ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ وائرس کتنا خطرناک ہے؟ بالکل، سوات میں روز بروز جو ہے کورونا کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت کورونا کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ سوات میں آج بھی 34 مزید کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح 4,901 تک تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اب تک تقریباً 136 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور اسی طرح سعید الشریف اسپتال کے ترجمان کے مطابق 557 فعال کیسز اس وقت سوات میں موجود ہے۔ NCOC کے مطابق سوات میں شرح جو ہے وہ 23% تک پہنچ چکے ہیں، جو صوبے کی سب سے زیادہ شرح ہے۔ انتظامیہ جو ہے وہ صرف دعووں تک محدود ہے، نہ کوئی ماسک کا استعمال کر رہے، نہ کوئی سماجی فاصلہ اختیار کر رہے۔ اگر اسی طرح یہ بے احتیاطی جاری رہی تو کورونا کیسز میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادھر پشاور میں بھی کورونا کیسز کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ شہری ہو یا دکاندار، کوئی احتیاط کو تیار نہیں، البتہ کیمرہ دیکھتے ہی دکانداروں کو ماسک یاد آ جاتا ہے۔ آج نیوز کے نمائندے کامران علی اس وقت قصہ خانی بازار میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ کامران، کیا منظر دیکھا جب آپ نے یہاں کا وزٹ کیا؟ پشاور بھی کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ہونے والے شہروں میں شامل ہے۔ NCOC کے مطابق پشاور میں کورونا کیسز کی جو شرح ہے وہ 22% تک جا پہنچ چکی ہے۔ کیسز میں مسلسل اضافے کے باوجود پشاور کے جو شہری ہے وہ احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت ہم پشاور کے قصہ خانی بازار میں موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کی بازار میں رش ہوتی ہے، لیکن چند ہی شہریوں نے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فیس ماسک پہنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر دکانداروں کی طرف دیکھا جائے تو دکاندار بھی
कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है और जब उनके सामने कैमरा जो है ला के रख दिया जाते तो वो फेस मास्क का इस्तेमाल करते कि बाइस पेशावर में कोरोना केसेस आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। इंतजामिया की अगर बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब से दावे और ऐलानात तो बहुत सारे किए जाते, लेकिन ग्राउंड पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और कोई अमली इक़दामात नजर नहीं आ रहे, जिसके बाइस पेशावर कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। पंजाब में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हुकूमत ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदिराज और जुर्माने शुरू कर दिए, लेकिन अब भी कुछ अफराद मास्क पहनने को तैयार नहीं। बेशतर ने हुकूमत से लॉकडाउन न लगाने की अपील कर दी। लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। हमने नहीं मास्क डालना, क्यों डालिए? जो साडा मन साफ है, असीं नहीं मास्क लाने। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार की तो हुकूमत ने पाबंदियों पर सख्ती करना शुरू कर दी। मास्क न पहनने पर जुर्माना हुआ तो बेशतर अफराद बाजारों में मास्क पहने दिखाई दिए, मगर कुछ अफराद अभी भी मास्क पहनने को तैयार ही नहीं। सारी वजह ने फायदा और मास्क है अपने कोल है, एक दी जाए दो मास्क न दे। मैंने लगाया था, अभी याद नहीं रहा, मेरे पास रक्शे पे है, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, तो 50% तो लोगों ने डाला हुआ है। लाहौर में लॉकडाउन से मुतल्लिक भी आज फैसले का इम्कान है। शहरी कहते हैं लॉकडाउन गरीबों को फाकों पर पहुंचा देता है, हुकूमत पहले रिलीफ दे। जैसे पिछले साल मुकम्मल लॉकडाउन लगा था, इसलिए वो कह रही इसमें आवाम का भी फायदा है, हर इंसान का बंदे का फायदा है। इनको चाहिए जो लॉकडाउन लगाना है तो कोई गरीबों के लिए भी तो सहूलत होनी चाहिए ना। तनख्वाहें कोई बढ़ाई नहीं है और महंगाई पे महंगाई, तो किसी ने जमीन पाट के खानी है। SOP की खिलाफ वर्जियों पर लाहौर में गुज़िश्ता रोज 40 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया और बस टर्मिनल्स पर 40 गाड़ियों के 1 लाख रुपए के चालान भी किए गए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती पाबंदियों पर अभी भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका। शहरी कहते हैं हुकूमत लॉकडाउन लगाते वक्त अवामी रिलीफ का भी सोचे। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की कार्रवाइयां जारी है। बगैर मास्क 96 मुकदमात, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 120 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक मलिक से। अतीक, इंतजामिया एक्शन में नजर आती है, क्या बताएंगे मजीद? जी बिल्कुल, लाहौर में जो है वो बगैर मास्क के घूमने वाले अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी तक जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बगैर मास्क के घूमने वाले 96 अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि SOP की खिलाफ वर्जी पर 120 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं। अगर गुज़िश्ता 2 रोज की बात कर ली जाए तो मजमूई तौर पर अभी तक जो है वो 216 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं और सबसे ज्यादा जो कार्रवाइयां हैं वो लाहौर की CT डिवीजन में जो है वो की गई हैं, जहां पर बगैर मास्क के 31 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि SOP की खिलाफ वर्जी पर 66 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं और बाकी जो मुकदमात हैं वो लाहौर की दीगर डिवीजन जिसमें कैंट, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, सिविल एंड डिवीजन जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ अगर जिला इंतजामिया की बात भी कर ली जाए तो उनकी जानिब से भी कार्रवाइयां जो है वो तेज कर दी गई हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से लाहौर के मुख्तलिफ जो बस स्टैंड है वहाँ जहाँ पर कोरोना SOP की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, बस स्टैंड जो है वो सील कर दिए गए हैं और जहाँ बसेस में जो है वो समाजी फासले को बरकरार नहीं रखा जा रहा है तो उन बसों को भी सील किया जा रहा है, और जबकि 1 लाख रुपए से ज्यादा चालान जो है वो अभी तक किए जा चुके हैं। और इस हवाले से जो CT पर लाहौर है उनकी जानिब से मुकदमात दर्ज किए गए हैं जिन्होंने SOPs पर अमल नहीं किया है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात दे रहे थे अतीका। इस्लामाबाद में मजीद 7 सब सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, जबकि 6 सब सेक्टर्स को डीसील कर दिया गया। अस्पतालों में गुंजाइश भी कम होती जा रही है। आयशा नाज की रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत कोरोना से मुतासिर, मस्बत केसेस की शरह 16% से जायद, योमिया अमवात भी रिपोर्ट हो रही। ताहम इंतजामिया सो रही है और अवाम भी लापरवाही के आला दर्जे पर। 2 हफ्ते मुकम्मल होने पर 6 सब सेक्टर डीसील कर दिए गए, लेकिन दीगर 7 में स्मार्ट लॉकडाउन नफाज कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज 16.2% मस्बत केसेस के साथ 856 नए मरीज रिपोर्ट हुए। इंतजामिया की जानिब से पहले मरहले जैसे इक़दामात हैं, ना अवाम अहकामात की पासदारी कर रही है। दिहाड़ीदार लॉकडाउन पर शिकवा कर रहे हैं कि योमिया उजरत वालों का दुख तनख्वाहदार तबका नहीं समझ सकता। पाबंदियां बराह रास्त गरीब को मुतासिर करती हैं। जो गरीब लोग हैं वो किधर जाएंगे? उनको तनख्वाह तो नहीं होती है, मजदूरी भी ना करे। भूख से डर रहे हैं, इस कोरोना से लोग नहीं डरते।
कहते हैं कि हम भूखे मर जाएंगे। अस्पतालों में गुंजाइश पर शहरी कहते हैं कोरोना ही नहीं आम हालात में भी गरीब के लिए अस्पतालों में जगह नहीं। पहले भी यही हाल है, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है, कोरोना हो या ना हो, गरीब तबका जो है वो बाहर ही पड़ा रहता है, उसके लिए कोई बेड नहीं है। जो मजदूर तबका है वो इस चीज से वो नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। शहरी कहते हैं हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करो, दूसरों की लापरवाही की सजा मत दी जाए। आयशा नाज, आज न्यूज इस्लामाबाद। जेहलम में भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी है। 8 दुकानों को सील कर दिया गया है, जबकि मुतादिद पर जुर्माने आयद किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज पर से। जी शहबाज बताएगा। बिल्कुल, जेहलम में अवामी बेहतियाती की बिना पर कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और 24 घंटे में मजीद 30 अफराद इस मुल्क वायरस में मुब्तला हुए हैं। 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1806 हो गई है, अमवात की तादाद 48 हो गई है। इस वक्त DHQ हॉस्पिटल जेहलम में 67 अफराद जेर इलाज हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम इसको संजीदा नहीं ले रही। इंतजामिया हरकत में आई है और SOPs की खिलाफवर्जी करने वाले दुकानदारों को 2.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। 8 दुकानें सील की गई हैं। इस वक्त भी बाजार की सूरत हाल ये है कि गहमा गहमी रश है, हजूम की कैफियत है। हैंड सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल इंतहाई कम देखने में आ रहा है और समाजी फासले यकसर नजरअंदाज किए जा रहे हैं। फैसलाबाद में शहरियों की गैर संजीदगी के बायस कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जिला इंतजामिया ने ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे अजीम शहजाद से। अजीम, फैसलाबाद में कोरोना केसेस की क्या सूरत हाल है और कितने इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है? जी, कोरोना के मरीजों की तादाद के हवाले से लाहौर के बाद फैसलाबाद दूसरे नंबर पर है। हर गुजरते दिन के साथ मरीजों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। जिला इंतजामिया की जानब से ऐसे ही ज्यादा मुतासरा 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। ये तमाम इलाके कनार रोड पर वाक़े हैं। ऐसे ही एक इलाके में मौजूद है, यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ना तो इसके दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया और ना ही कोई पुलिस एहलकार तैनात किया गया और शहरी जो है वो बिला खौफ व खतर इन इलाकों में आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं और मार्केटें और बाजार जो हैं वो भी खुले हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इंतजामिया ने जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है, जहाँ पर मरीजों की तादाद ज्यादा है, वहाँ पर चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए ताकि शहरी जो है वो बिला खौफ खतर जो है वो यहाँ से जो है मूव न कर सकें। बेएहतियाती के बायस कोरोना केसेस में कमी नहीं आ सकी है। सिंध हुकूमत के मुताबिक रिपोर्टेड केसेस में से 70% का ताल्लुक कराची से है। कामरान शेख की रिपोर्ट देखिए। शहरियों की बेएहतियाती गैर संजीदगी जारी। कराची में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई खराब। SOP की खिलाफ वर्जी मामूल बन गई। नतीजा केसेस तेजी से बढ़ने लगे। सिंध हुकूमत के मुताबिक रिपोर्ट केसेस में से 70% का ताल्लुक कराची से है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वायरस की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। एहतियात न बरती तो वायरस का फैलाव बढ़ सकता है। 22 जनवरी से मुतनब्बह किया और इस खदशे का इजहार किया और कि कोरोना पाकिस्तान में आ सकता है, उसके एहतियाती तदाबीर अपनाएं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना ही हमारी आवाम ने SOPs को फॉलो किया कभी भी और ना ही हुकूमत SOPs पे अमल दरामद कराने में कामयाब हुई है। सिंध में अब तक वायरस के 2,60,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 4,500 तक पहुँच गई है। कामरान शेख, आज